देखिए, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे बेवजह पेशेंट एक्साइट हो। ये अभी तक ट्रांस कंडीशन में है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें स्टेबल करने के लिए, इसलिए ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, इनकी रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए। प्लीज। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ठीक है, कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा तुमसे, लेकिन तुम मुझे कांटेक्ट करोगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप जिए एक अच्छी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी। सर जी, शायद गलती मेरी ही है। आपके बिना जीने की सजा मिली थी। जिस दर्द से मैं गुजरी हूं ना, वो मंजूर है मुझे, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको चोट पहुंचाऊंगी? आपकी इच्छा ना आपको चोट पहुंचाएगी। आपका दिल दुखाना चाहूंगी, आपको खुद से दूर कर नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि आपसे कहीं ज्यादा चोट मेरे दिल को लगी है। मैंने खुद को चोट पहुंचाई है। अरे आपसे दूर रह के मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरे लिए आसान नहीं था। सर जी, अब आप आंखें खोल लीजिए। हम ना बहुत देर हो गई है। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बस लौट आइए। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं ना? आप पति है मेरे, आप जान है मेरी। और आप एक लौते दोस्त है मेरे, सब कुछ है मेरा। और जिंदगी और मौत इस सफर के एक लौते साथी है मेरे। और ना, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप खुश रहें। और आपको ये खुशी देने के लिए जनक को दुनिया का हर दुख, हर दर्द मंजूर है। बस आप मुझे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप चले गए ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी, एक पल के लिए भी नहीं।
दुनिया में आपके बिना, मैं आपके बिना अकेली नहीं रह सकती हूँ, एक पल के लिए भी नहीं। प्लीज सर जी, प्लीज। ये फूल जो है ना सर जी, मैं उसी मंदिर से लेकर आई हूँ जहाँ पे हम दोनों को साथ में जाना था। और मैंने उसी मंदिर में जाके ना माँ से प्रार्थना की और वो সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। मंदिर जाएंगे साथ में और प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे साथ में। हम साथ में जी तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही आसमान तले ना जिए हम। एक ही सूरज के नीचे, एक ही बारिश में, जब वो बारिश हम दोनों को पूरी तरीके से दिखा देगी। एक ही नदी, एक ही पहाड़, एक ही मंजिल। ইয়াসিন শাহ হুজুর সত্যের বাণী নিয়ে এখন বাংলাদেশে ইসলামী রেনেসার অগ্রনায়ক 2001 সালে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অলৌকিক শক্তির অধিকারী বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এ সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া মোতাবেক জিন চালানের মাধ্যমে অতি অল্প সময় সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। প্রিয় মানুষটি কি আপনার অবাধ্য? তদবিরের দ্বারা অবাধ্য এই মানুষটি হয়ে যাবে আপনার পূর্ণ বাধ্যগত। আমার নাম লাকি বেগম, আমার বাড়ি খুলনা। আমার বিয়ে 3 বছর পরে হঠাৎ আমি জানতে পারলাম আমার স্বামী পাশের বাড়ি একটা মেয়ের সাথে পরকীয়া করে। এই কারণে আমার সংসারে অশান্তি শুরু হয়ে গেল। তখন আমি ইয়াসিন হুজুরের কাছে আসলাম। আমার স্বামী এখন ভালো হয়ে গেছে, আমি অনেক সুখী আছি। স্বামী হয়ে যাবে স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রী হয়ে যাবে স্বামীর প্রিয় অনুগত, প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের বাঁধনে থাকবে চির আবদ্ধ, দূর হয়ে যাবে মনের দ্বন্দ্ব, পূর্ণ হয়ে যাবে মনের অবাধ্য সন্তান বাধ্য করা, নেশা থেকে মুক্তি, ব্যবসায় লোকসান ঠেকানো, বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হচ্ছে না, বদ জিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা ইত্যাদি সমস্যা থেকে আপনি কি পরিত্রাণ পেতে চান? ইয়াসিন শাহ হুজুর হতাশাগ্রস্ত মানুষের যে কোনো সমস্যার কথা শুনে তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন। বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এই সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। জিন জাতি বাতাসের সাথে মিশে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারে এবং যে কোনো মানুষের সাথে মিশে যে কোনো অসাধ্য কাজকে সম্ভব করতে পারে। সেই বাধ্য জিনের তেলেসমাতি পাওয়ার ও হুজুরের অলৌকিক কেরামতিতে শুধু দেশে নয় প্রবাসেও হাজার হাজার মানুষ সমস্যা মুক্ত হয়েছেন। নোয়াখালী সাইফুল, কুমিল্লা রোজিনা, সিলেটের হান্নান, চট্টগ্রামের মিজান, টাঙ্গাইলের বাহার, ঢাকার তাসফিয়া। আমি একটি ছেলের সাথে প্রেম করতাম, ছেলেটির সাথে আমার বিয়ে হয়। ওর বাবা মা আমাকে মেনে নেয় না, হুজুরের তদবিরে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে মেনে নেয়। এখন আমরা অনেক সুখে আছি। আপনার যে কোনো সমস্যা নিয়ে ইয়াসিন শাহ হুজুরের সাথে বিস্তারিত আলাপ করে আপনার কষ্টের কথা খুলে বলুন হুজুরের কাছে। তদবিরে কামিয়া। लेकिन रास्ते अलग अलग। मैं अकेली और आप भी। और जब एक अपना सफर शुरू करेगा तो उसे दूसरे की याद आएगी और ऐसे हम एक दूसरे के मन में हमेशा जिंदा रहेंगे सर जी, हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरी सिर्फ एक ही लड़ाई, एक ही जंग है, आपको जिंदा जिंदा रखने की। मैं आपको बांध कर नहीं रखना चाहती, आप पे हक नहीं जताना चाहती हूँ, सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ आपको, बस कैसे भी कर, बहुत खुश। मैं जानती हूँ मेरा सच, ये सच कि आप मेरे पति हैं, ये दुनिया के सामने मैं कभी कह ही नहीं सकती हूँ, और ना ये बता सकती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन माँ,
आप ये सच जानती हैं। मेरी इस सच्चाई से आप वाकिफ हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, बस मेरे पति को बचा लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, बचा लीजिए। अब्बू, हाँ? चॉकलेट और चिट्ठी, ना तुमने चॉकलेट खाई और ना तुमने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी? चॉकलेट एंड चिट्ठी जो तुम्हारे पापा लेके आए हैं। ओह, जो अनी ने दी थी, वो मैं नहीं खाऊंगी और चिट्ठी भी मैं नहीं पढ़ूंगी। क्या नो? कौन ऐसा करता है नोटुन माँ? बोलो। मिलने नहीं आया और चिट्ठी भेज के भाई का रिश्ता निभा रहा है। हाँ, नमस्कार, बोलो। बियान, वो अनी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ है अनिरुद्ध को? शायद मैसिव स्ट्रोक हुआ है। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर, किसी को कुछ हुआ है क्या नोटुन माँ? अबू को अभी कुछ मत बोलिएगा। क्या हुआ है नोटुन माँ? सब ठीक है? क्या हुआ, बोलो ना। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था, ये बताने के लिए कि अबू को अभी कुछ मत बताइएगा। जी, कुछ नहीं अबू, वो क्या है ना, मोहल्ले में कोई बीमार है, इसलिए उनका फोन आया है। ए बाबा, ए, तुम हाथ जोड़ करो। ए, तुम भी हाथ जोड़ करो। हाँ, मैं भी हाथ जोड़ करती हूँ। हे भगवान, जो भी बीमार है उसको प्लीज ठीक कर दो। कोई भी बीमार होना नहीं चाहिए। हाँ, प्लीज 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 ठीक कर दो उसे। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर्स ने तो ज्यादा उम्मीद नहीं जताई है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि अनी के नाम पर प्रार्थना करें। मैं ना लालू से बात करती हूँ, वो जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा। ना ना भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनी बस ठीक हो जाए, इसी की बस प्रार्थना कीजिए। अर्शी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। बेटा, अनी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ है आपके बेटे को। अर्शी, ऐसी बात नहीं है। पहले हमें भी ऐसा लग रहा था, लेकिन अनी सच में ठीक नहीं है। अनी शायद ठीक होता, लेकिन इस पूरे मैटर को जिन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है ना, उन्हीं की वजह से अनी की हालत है। कौन है वो लोग? और कौन ही होगा आंटी, छोटोन और बाबा की फेवरेट। हम तो खुद हैरान है उस लड़की को। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। तुम्हारी हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा लाली। तुम्हें जाना है जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ खड़े होकर और प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। छोड़ो ना अपना, कभी कभी तुम्हें देखकर हैरानी होती है ना कि तुम कब और कैसे इस तरह के इंसान बन गए। लगता ही नहीं कि हम तुम्हें जानते हैं। इसलिए बाप, क्योंकि मैंने आपकी इस मिली भगत में आपका साथ नहीं दिया, इसीलिए आपके प्लानिंग बॉडी में आपका साथ नहीं दिया। दादा प्लीज हॉस्पिटल है ये। बिहेव। लाल, इग्नोर दैट। काकू, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप खुद देखें ना कैसे छोटोन और बाबा मेरे को ताने पे ताने मार रहे हैं। और आप देखिए ना, इन दोनों की मिली भगत नहीं होती तो झलक यहाँ नहीं आती। सब कुछ किसी की मिलीभगत ही होती है क्या? अनी उधर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, दर्द में है,
ये झूठ है। एक मिनट, झनक क्या मतलब? झनक मतलब झनक अर्शी। झनक यहाँ आई है। And I'm sure अनिरुद्ध भी जानता था कि झनक यहाँ आने वाली है, इसीलिए उसने ये सब बीमारी का ड्रामा किया। I'm sure कि थोड़ा कुछ हुआ होगा, लेकिन राई का पहाड़ बना दिया उसने। नहीं सृष्टि, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने हमसे खुद कहा है कि अनी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ইয়াসিন শাহ হুজুর সত্যের বাণী নিয়ে এখন বাংলাদেশে। ইসলামী রেনেসার অগ্রনায়ক 2001 সালে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অলৌকিক শক্তির অধিকারী বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এ সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া মোতাবেক জিন চালানের মাধ্যমে অতি অল্প সময় সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। প্রিয় মানুষটি কি আপনার অবাধ্য? তদবিরের দ্বারা অবাধ্য এই মানুষটি হয়ে যাবে আপনার পূর্ণ বাধ্যগত। আমার নাম লাকি বেগম, আমার বাড়ি খুলনা। আমার বিয়ে 3 বছর পরে হঠাৎ আমি জানতে পারলাম আমার স্বামী পাশের বাড়ি একটা মেয়ের সাথে পরকীয়া করে। এই কারণে আমার সংসারে অশান্তি শুরু হয়ে গেল। তখন আমি ইয়াসিন হুজুরের কাছে আসলাম। আমার স্বামী এখন ভালো হয়ে গেছে, আমি অনেক সুখী আছি। স্বামী হয়ে যাবে স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রী হয়ে যাবে স্বামীর প্রিয় অনুগত, প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের বাঁধনে থাকবে চির আবদ্ধ, দূর হয়ে যাবে মনের দ্বন্দ্ব, পূর্ণ হয়ে যাবে মনের অবাধ্য সন্তান বাধ্য করা, নেশা থেকে মুক্তি, ব্যবসায় লোকসান ঠেকানো, বয়স হয়েছে অথচ বিয়ে হচ্ছে না, বদ জিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা ইত্যাদি সমস্যা থেকে আপনি কি পরিত্রাণ পেতে চান? ইয়াসিন শাহ হুজুর হতাশাগ্রস্ত মানুষের যে কোনো সমস্যার কথা শুনে তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন। বিস্ময় মানব ইয়াসিন শাহ হুজুরের সান্নিধ্যে পরশ পাথরের মতো আশ্চর্যজনক সাফল্য পাওয়া যায়। আপনার যে কোনো ব্যর্থতা নিয়ে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় ভেবে পরিপূর্ণ ভক্তি নিয়ে আসুন এই সময়ের বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাসাধকের কাছে। জিন জাতি বাতাসের সাথে মিশে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারে এবং যে কোনো মানুষের সাথে মিশে যে কোনো অসাধ্য কাজকে সম্ভব করতে পারে। সেই বাধ্য জিনের তেলিসমাতি পাওয়ার ও হুজুরের অলৌকিক কেরামতিতে শুধু দেশে নয় প্রবাসেও হাজার হাজার মানুষ সমস্যা মুক্ত হয়েছেন। নোয়াখালী সাইফুল, কুমিল্লা রোজিনা, সিলেটের হান্নান, চট্টগ্রামের মিজান, টাঙ্গাইলের বাহার, ঢাকার তাসফিয়া। আমি একটি ছেলের সাথে প্রেম করতাম, ছেলেটির সাথে আমার বিয়ে হয়। ওর বাবা মা আমাকে মেনে নেয় না, হুজুরের তদবিরে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে মেনে নেয়। এখন আমরা অনেক সুখী আছি। আপনার যে কোনো সমস্যা নিয়ে ইয়াসিন শাহ হুজুরের সাথে বিস্তারিত আলাপ করে আপনার কষ্টের কথা খুলে বলুন হুজুরের কাছে। তদবিরে কামিয়া। वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। हम अब तक उसे मिल भी नहीं पाए हैं। हाँ लेकिन झनक अंदर गई है। What? What? हाँ, कहीं से पूजा करके फूल लाइए, अनी के माथे से छुआने के लिए चीखते चिल्लाते जबरदस्ती अंदर चली गई। मेरा पति है, मैं कुछ होने नहीं दूंगी, आप में से किसी की हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की, ये सब बोल रही थी। सीन क्रिएट किया उसने। मैंने मना किया था ना तुमसे, मना किया था, लेकिन मेरी एक बात भी नहीं सुनती हो तुम। चुप, एकदम चुप। यहाँ आने से मना किया था, हर बार शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। देख रही हो ना क्या हो रहा है यहाँ। हुक तो बॉस, हम यहाँ आए क्योंकि हमसे कहा गया था कि यहाँ सीरियस सिचुएशन है। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद दिख रहा है ना तुम्हें क्या ड्रामा चल रहा है, क्या ज्यादा जरूरी है। सृष्टि, हमारे लिए तो बस हमारे बेटे का ठीक होना जरूरी है और डॉक्टर ने हमसे कहा है कि अनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऋषि बेटा, सच में अनी की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आंटी, डॉक्टर्स आप लोगों को इजीली कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी आसानी से भरोसा नहीं होगा। मुझे झनक से मिला है, कहाँ है वो? ऊपर है जाना। अगर तुम चाहो तो जाकर मिल सकती हो। वाओ, तो तुम भी यही हो और अपनी रीढ़ की हड्डी मुंबई में छोड़ के आए हो। वैसे मुंबई में तुम जिसके साथ रह रहे थे ना, वो यहाँ किसी और के साथ अय्याशी कर रही है, फिर भी तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के बीच में। अगर अनिरुद्ध बीमार नहीं होता ना तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता। मैडम, आप जाकर बाहर वेट कीजिए, कुछ भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, प्लीज। नहीं नहीं मैम, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। मुझे ये देखिए, ये मुझे महसूस कर सकते हैं। इन्हें पता है कि मैं यही हूँ उनके पास। और देखिए, आप मॉनिटर पे खुद देखिए सर, प्लीज प्लीज मुझे इनके पास ही रहने दीजिए सर जी। सर जी
तो चमत्कार हो गया। इनके टच से पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस बेहोशी की हालत में भी पल्स रेट स्टेबल हो रहे हैं। ये तो मिरेकल हो गया सर। हाँ, अब देखिएगा सर जी ठीक हो जाएंगे। मिरेकल नहीं है, इस ट्रांस स्टेट में भी ये इनके टच को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये टच इनके लिए काफी फेमिलियर है। इनके टच से पेशेंट को काफी कंफर्ट आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, और इसीलिए शायद हम ये सारी चेंजेस देख पा रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपको फिर भी बाहर जाकर वेट करना होगा। हमें देखना है कि अब हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए रेडी कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, बस थोड़ी देर और मुझे मेरे पति के पास रहना दीजिए, बस थोड़ी देर। मैं डरी हूँ सर जी, मैं यही हूँ आपके पास। जैसे कोई पुलिस हो, वकील हो या कोई और, किसी से डर नहीं लगता है मुझे। एक ही जिंदगी है ना मेरे पास, तो जिंदगी में अपनी आंखों के सामने किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं होने दूंगा। आप सब लोग होंगे अमीर परिवार से, तुम एक बड़े घर की बहू और एक वो टैलेंटेड डांसर, राइट? लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मामले में तुम जनक के आसपास भी नहीं भटक सकती। वो जनक ही थी। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। तुम्हें ना जनक का एहसान मानना चाहिए कि जो रुतबा और शौहरत जनक डिजर्व करती है ना, वो सब उसने बिना सवाल किए एक झटके में तुम्हें दान में दे दिया था। यार ये सब तुम्हारे समझ की बात नहीं है। वैसे तुम्हें तो यकीन भी नहीं हो रहा था ना कि तुम्हारे पति बीमार है, इतना सीरियस है, तो यहाँ पर किस हक से खड़ी होकर इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम? अनिरुद्ध के पास झनक है, तुम नहीं। पूजा करने के लिए झनक गई थी, तुम नहीं। जहाँ पर साइंस फेल हो जाता है ना, वहां पर फेथ काम में आता है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था अनिरुद्ध के लिए, ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस वक्त झनक मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि उसे यकीन है कि भगवान उससे उसका अनिरुद्ध कभी नहीं छीनेगा। इसलिए झनक उसके पास गई है ताकि पूजा का फूल उसके माथे पर लगाए और अनिरुद्ध ठीक हो जाए। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी कहानी सुना दी, क्लाइमेक्स नहीं बताया कि कैसे वो लड़की तमाशा करके त्रिशूल उठा के हमें धमका कर अंदर गई अनिरुद्ध के पास। इस लड़की के पीछे मत पड़ो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मनहूस है वो, मनहूस। वो आप लोगों को डरा कर धमका कर अंदर गई है और आप फैमिली होके भी यहाँ खड़े हो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बीवी होके यहाँ खड़ी रहूं। मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा झनक क्या कर लेगी। मार डालेगी मुझे तो होने दो, अच्छा ही होगा। कम से कम एक ही बारी में किस्सा खत्म। अर्शी बेटा, तुम क्या चाहती हो? आंटी, मैं अनी से मिलना चाहती हूँ। अर्शी, अभी डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, प्लीज। वो इंटेंसिव केयर में है। डॉक्टर्स आपको समझा सकते हैं, मुझे नहीं। एक बाहर वाली अंदर अनी के पास है और मैं उसकी बीवी यहाँ खड़ी हूँ। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम्हें हर बार बताना पड़ता है अर्शी कि तुम अनी की बीवी हो। अगर तुम उसे सच में अपना पति मानती तो आज उसे छोड़कर नहीं जाती। बीवी होना और बीवी का धर्म निभाने में फर्क होता है अर्शी। अगर तुमने अपना फर्ज निभाया होता ना, तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। झनक अंदर नहीं होती और तुम यहाँ बाहर खड़ी नहीं होती।
तुम तो अपनी माँ के साथ उसे छोड़कर चली गई माँ। क्या गलत किया? क्या गलत किया इसने? तुमने भी तो कैसे तैसे करके उस लड़की को यहाँ बुला ही लिया ना। सृष्टि जी, झनक को मैंने नहीं बुलाया था। झनक अचानक से हमें मिली। ओह, अचानक? हो सकता है ना भगवान दोनों को शायद मिलाना चाहते हो, इसलिए झनक कोलकाता आई। मैं नहीं मानता ये सब झूठी कहानी है ये। तो जांच पड़ताल कीजिए, पुलिस को बुलाइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डालिए, सजा दीजिए मुझे। खैर इन सब बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें आने की कोई खबर नहीं मिली। अगर वो ऑपरेशन करने की हालत में होता तो उसे नीचे लेकर आए होते। डॉक्टर्स ने हमें इन्फॉर्म किया होता। इस बारे में सोच लें हम लोग। इसका मतलब वो लड़की जो फूल लेकर आई थी वो भी काम में है ना छोटन? मेजो गोदी, मुझे विश्वास है कि अगर अब कोई चमत्कार होगा तो वो झनक की वजह से होगा। मॉम, आप आ रही है मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम भी मत जाना, ओके? उस लड़की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम कल दुबई जा रही हो, याद है ना तुम्हें? उस पर कंसंट्रेट करो। सब ड्रामा के चक्कर में अपना काम खराब मत करो। वाह, एक माँ होने के नाते ना एक बहुत ही कमाल की राय दी आपने अपने बेटे को। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, 2 दिन बाद में जो दुबई डांस फेस्टिवल है ना, वहां पर जनक भी जाने वाली है। वैसे 2 दिन है जाने में, और ये बात तो तय है कि जनक अनिरुद्ध को इस हालत में यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक्चुअली यही फर्क है तुम में और जनक के अंदर। तुमसे किसी ने फर्क पूछा? हाँ? और तुम इस फैमिली के मेंबर नहीं हो ना? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जस्ट गेट लॉस्ट। नो वे, कहीं नहीं जाने वाला। झनक के साथ यहीं खड़ा रहूंगा मैं। और वैसे भी ना, इस परिवार के सभी लोग बुरे नहीं हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, जैसे कि बाबलू सर, छोटन भाई। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। अर्शी, अर्शी, अर्शी कहाँ जा रही हो? नटुन्ना, पता है ये दोनों कौन है? कौन? ये झनक है और ये मेरा भाई है अनी। अनी ना झनक को छोड़ के चला गया है। हाँ, इस बार जब आएगा ना, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी, अनी को भी और झनक को भी। हाँ, बोलूंगी अब बहुत नाटक हो गया है। हाँ, तू तो मुझे भूल ही जाता है और झनक भी मुझे भूल जाती है। बहुत डांटूंगी, बहुत डांटूंगी, पता है? हाँ। इस बेचारी लड़की को तो पता ही नहीं है कि इसने अपने भाई अनी के लिए प्रार्थना कर ली। नटुन माँ, आप मेरा साथ दोगी ना? देखो। हाँ। आपो, हाँ? एक बार अपने भाई की लिखी हुई चिट्ठी तो पढ़ लो। क्यों? मुझे बुरा नहीं लगता क्या? हाँ? अनी आएगा, आके झनक को अपनी बीबी बनाएगा, उसके बाद मैं चिट्ठी पढ़ूंगी। हाँ। ए तुम दोनों को पता नहीं है हाँ कि अप्पू जी कौन है और क्या कर सकती है। मेरा अनी और मेरी झनक।
अर्शी, अर्शी, अर्शी रुको। अर्शी कहाँ जा रही हो? मॉम मुझे जाना ही पड़ेगा। अनी अभी भी मेरा हस्बैंड है। इस वक्त कोई पराया इंसान उसके माथे से पूजा का फूल टच कर रहा है और मैं यहाँ खड़ी हुई देखती रहूं? देखो अर्शी, आज तक मैंने तुमसे कहा नहीं, लेकिन अब तुम्हें बता रही हूँ। उस झनक को अब इस दुनिया में जीने का बिल्कुल हक नहीं है। उसका अंत शुरू हो गया है। अब इसके आगे मैं उसे बढ़ने नहीं दूंगी, समझी? मैम प्लीज अभी बाहर चलिए। पेशेंट अभी धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। आपने तो चमत्कार कर दिया, आपकी वजह से ये सब हुआ है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बस सर जी एक बार ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं वक्त जाया नहीं करूंगी। और आपको ऑपरेशन करना है ना, तो आप एक काम कीजिए, इनको जल्दी से बस ऑपरेशन के लिए ले जाइए। जी, हम इन्हें जल्दी ही ओटी में शिफ्ट करेंगे। वैसे सच कहूं तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इन्हें बचा पाना मुमकिन है। और ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदले में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप यहाँ क्यों नहीं थी अर्शी दीदी? ऐसी कौन सी जगह पे थी, ऐसा क्या कर रही थी जो यहाँ पर नहीं थी आप? जाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मेरी बेटी से जवाब मांगोगी तुम? हाँ? और तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सिचुएशन तुम जानती थी ना, इसलिए तुम यहाँ आई हो। तुम्हें पता था अनिरुद्ध और अर्शी अब्रॉड जाने वाले, इसलिए तुम यहाँ आई। और यहाँ आके ड्रामेबाजी कर रही हो। ड्रामेबाजी? ऑफ कोर्स ड्रामेबाजी। जितना अनी बीमार नहीं है उससे कई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो तुम लोग। अच्छा, अब मेरे साथ साथ आप डॉक्टर्स पे भी उंगलियां उठा रही हैं? अरे अभी भी वक्त है, देरी नहीं हुई है अर्शी दीदी। ना पहले कभी मैं आपकी खुशियों के बीच में आई हूँ, ना ही आगे आऊंगी, लेकिन सर जी पे अगर कोई मुसीबत आएगी, वो बीमार पड़ेंगे, तो मैं यूं ही दौड़ी भागी उनके पास चली जाऊंगी। इस बार तो मैं अनजाने में आई, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी होता, वो बीमार पड़ते, तो उनकी खबर मुझ तक जरूर पहुंचती और तब मैं आती। तो बोलिए, बोलना क्या चाहती है आप? तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सिर्फ मेरी ही नहीं, अनी की भी। क्यों? সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। छोटी बच्ची हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता। तुमने मेरे और अनी के बाहर जाने के प्लान पे ना पानी फेर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ताकतवर हूँ। हर्षी, इससे बातें मत कर, इससे पहले यहाँ से बाहर निकालो। हर्षी दीदी खुद को सरजी की पत्नी मानती है ना? अरे बीमार है अभी आपके पति, और कुछ ही देर में उनको ऑपरेशन के लिए भी लेकर जाएंगे, तो आप मुझ पर क्या वक्त बर्बाद कर रही है? इस वक्त आपको उनकी सलामती की, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए है, क्योंकि मुझसे लड़ने के और कई मौके मिलेंगे आपको। अर्शी दीदी बकवास बंद करो।
और निकलो यहाँ से। देख लीजिए आप सब, यहाँ ओटी के सामने भी ये किस तरह से ड्रामा कर रही है। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमारी फैमिली के कुछ लोग इसको अभी भी सपोर्ट करेंगे। जनक, यहाँ पे सारे लोग तुम्हें बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं देंगे। अनी से मिली? कैसा है वो? छोटू, सर्दी अभी बेहतर है, लेकिन डॉक्टर्स थोड़ा और स्टेबल करेंगे उनको, उसके बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे ऑपरेशन के लिए। और जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते ना, मैं यही रहूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं इधर ही हूँ। और मैंने माँ से अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, मैंने सिर्फ सर जी के लिए प्रार्थना की है, और ये मन्नत उन्हें पूरी करनी होगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने विश्वास पे अटल रहूंगी। और मैं भी देखती हूँ कि कैसे भगवान सर जी को हमसे छीनते हैं। अपनी ये चीप नौटंकी ना बाहर जाके कर। शर्म नहीं आती तुम्हें जनक? शर्म लड़की, मेरे सामने खड़े होके ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम अनिरुद्ध की बीवी। हाँ, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ और ये सच है। और आप होंगी उनकी बीवी समाज में। लेकिन जो आज हुआ, अगर आप वाकई में उन्हें अपना पति मानती ना, तो उस हालत में उन्हें यूं सड़क पर अकेला छोड़ के नहीं आती। अरे एक बार भी आपने जानने की कोशिश की कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उन्हें आखिर हुआ क्या है? नहीं, आप समझते ही नहीं है उन्हें, और ना ही समझने की कोशिश करती हैं। ये जो हक जमाने की जंग है ना, उसमें आप मुझे हराना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं आप। इसीलिए इसने शादी की ना अपने सरजी से। लेकिन प्यार करती है, प्यार करती थी शायद, लेकिन वो प्यार भी उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मेरी वजह से सरजी और आपके बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। लेकिन इसमें सरजी की क्या गलती है? अरे वो तो एक बेसहारा लड़की को सपोर्ट करना चाहते थे बस, लेकिन वाकई में धकेला आपने है उन्हें मेरी ओर। अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए हमने सरजी मुझे दोस्त बना दिया। और अगर आप ऐसा नहीं करती ना, तो आपका ये जो रिश्ता है ना, ये आज भी कायम होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि आपने ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अंदर ही अंदर प्यार का रिश्ता नहीं है आप दोनों के बीच। और क्या कहा आपने? क्या आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती थी सरजी के साथ, अपनी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, अपना रिश्ता सुधारने के लिए। लेकिन नहीं अर्शी दीदी, ये सच नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती थी अपनी वजह से, अपने लालच की वजह से। क्योंकि आप एक बेहतर जिंदगी चाहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी।
अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती थी। आप सब कुछ अपने लिए चाहती थी, अपने और सर्जी के लिए नहीं। और यही सच है। अरे आपको क्या সকল लगता প্রকার है ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। बेवकूफ है आपके अलावा, और समझदारी सिर्फ आपके अंदर कूट कूट के भरी है। झनक, जब देखो तब भाषण देना क्यों शुरू कर देती हो तुम? अनी और अर्शी की जिंदगी के बीच में आकर तुम खड़ी हो गई हो, और यहाँ खड़ी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा खुद का कैरेक्टर क्या है भूल गई हो क्या तुम झनक? हाँ, इन दोनों की लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हो तुम? जरा सी सुई बनकर आई थी लड़की और इतनी तेज तलवार में बदल गई है। दोनों की लाइफ चीर के रखती है इसने। एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए बस, तुम्हारा बंदोबस्त भी करता हूँ मैं। वो तो पहले दिन से अब मेरा बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई कसर नहीं छोड़ी है आप लोगों ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कुछ कर पाए, और ना ही आगे कुछ कर पाएंगे। और खुला चैलेंज देती हूँ मैं आप सबको कि जब तक मैं खुद ये रिश्ता खत्म नहीं करती सर्जी के साथ, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। पेशेंट अब कैसा है? पहले से काफी स्टेबल है, इसलिए वो ऑपरेट कर पा रहे हैं। अनी, झनक यहाँ क्यों आई है? देखिए, आपके रुकने से इनकी कंडीशन खराब हो रही है। प्लीज यहाँ से जाइए आप। मैं नहीं जाने वाली। मैडम आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। आप प्लीज चलिए। डॉक्टर, झनक उसे मेरे पास बुलाइए ना। सर प्लीज काम डाउन। सर्जी, मैं इधर ही हूँ सर्जी, और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। झनक, ऑपरेशन के बाद जब मेरी आंखें खुलेंगी ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसे ही आप आंखें खोलेंगी, सबसे पहले आप मेरा चेहरा देखेंगे।